जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन जो है उसको पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर है जी कि अ सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स विद एन आइडेंटिफाइबल बाउंड्री। इसको और आसान कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। मैं कहता हूं जी कि a group of people working together for the same goal as well as for the personal goals. Group of people। अब यहाँ पर सोशल अरेंजमेंट का वर्ड है, मैंने साथ कह दिया अ ग्रुप ऑफ पीपल का। ग्रुप ऑफ पीपल से मुराद ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मजमुआ होता है कि जो कि मिलकर काम करते हैं। और किस चीज के लिए काम करते हैं? जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी बिजनेस की, उसके लिए काम करते हैं। यानी all the people are working to earn profit for the organization. These group of people are totally focused to bring exchequer for the company. And it is very essential that all these group members are going to contribute collectively for the same goal. And that the goal of that organization, which has been defined by the CEO of that company or the owner of that company. अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑनर है उसका एक विजन है that he wants to achieve something in his life at that point of time. अब उस विजन को हासिल करने के लिए that owner of the organization has hired some people, and especially the specialist people. The specialist people have been hired for the specialist posts. अब now it has become an artificial kind of a social arrangement. It's not a you can say it's a you can say it's not a artificial one, but the social arrangement which has been designed and defined by the owner of that company, and it is owing to the his thoughts, and it is owing to his vision. You may have heard and learned about the two difference between the two things, that is the vision and the mission. Vision means the ideas, the biggest of the goals of the owner, that is called a vision. And what about the mission? Mission means the steps which are going to take, which you are going to take for the achievement of that vision will be called the missions. And to achieve that vision, every owner of the organization is going to hire some people, and he is going to locate some people for the specialist posts. So this is a social arrangement for the controlled performance of the collective goals within identifiable boundary. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को हायर किया गया और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में दे हैव बीन गिवन द टास्क, द टारगेट्स, that you have to complete these targets. It means these are the specialist posts. There are some principles, there are some rules and regulations, and right in between them they have to perform their duty, all the members of the organization. They cannot go out of the parameters. एक उनके दरमियान में देयर इज ए सर्कल, उस सर्कल के अंदर रहते हुए दे हैव बीन गिवन सम अथॉरिटी, and they have to perform some things right within that authority, and they have to complete the tasks. And of the collective goals, and collective goals means all the members of the organization, they are they are interested to achieve the goal which the organization, which the business community has defined within identifiable boundary. Identifiable boundary, as I've already mentioned, that it is the defined circle which is being designed by the company's chairman, company's owner.
Now we are going to study one by one social arrangement. People in an organization follow certain hierarchy. इसकी वजह से हो। हाँ, के बाद चलाइएगा। नहीं, आप इसको बंद कर देंगे। People in an organization follow certain hierarchy. Their relationship are structured in a particular way. Hierarchy comes into being through the process of effective delegation of work. अब एक सर्टन हिरार्की बनती है। हिरार्की मीन्स एक डिजाइन बनेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, एंड देयर रिलेशनशिप्स आर स्ट्रक्चर्ड इन ए पर्टिकुलर वे। और उनका जितना भी रिलेशनशिप है ये इन हिरार्की के अंदर जितनी भी चेन बनेगी उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा एक पर्टिकुलर वे के अंदर डिफाइन किया जाएगा। हिरार्की कम्स इनटू बीइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ वर्क। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि भाई कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज्यादा लोगों को क्यों हायर किया जाता है। उसका मकसद अभी हमने डिस्कस भी कर चुके हैं कि कुछ स्पेशलिस्ट जॉब्स होती हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। उनके लिए अब द होल अथॉरिटी इज नॉट गोइंग टू बी लाइड विद इन द ग्रास्प ऑफ द सीईओ। उसके पास नहीं होती सारी अथॉरिटी, एंड ही डेलीगेट्स द पावर इनटू हिज सबऑर्डिनेट्स ताकि क्विक डिसीजंस लिए जा सके। अगर एक एक छोटी छोटी सी बात का डिसीजन लेने के लिए भी अगर आपको सीईओ से बात करनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो वो फिर इट विल डिले इन टेकिंग द डिसीजंस। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क भी होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होती है। दूसरे नंबर पे आता है जी कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। एफिशिएंट यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब उन्होंने उसी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए काम करना है। इट कैन बी अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग इंडिविजुअल्स फंक्शंस। दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर, इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ फंक्शन, असाइनिंग वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। अब हर काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मुख्तलिफ जगह के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। उनको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दी जाएंगी, मुख्तलिफ टारगेट्स दिए जाएंगे, उन्होंने मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे। उसके बाद आता है जी कलेक्टिव गोल्स। Individuals in organization have goals. Individuals cannot achieve goals in solitary situations, which can be easily achieved in organizational situation. अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई मेंबर है तो वो सॉलिटरी कोई गोल अचीव नहीं कर सकता। हमेशा कलेक्टिव गोल्स जो होंगे वो अचीव किए जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा ये समझे कि वो अकेले कुल है एंड ही कैन परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फॉलो हिम, ये नहीं हो सकता। So it means a one person, one worker, one employee is dependent upon the other colleague. उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है जी आइडेंटिफाइबल बाउंड्री। मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स होने चाहिए, दिस इज दिस लाइज विद द ऑनर। अब ये उसके पास मौजूद होती है अथॉरिटी कि वो कितने लोग रखना चाहता है, कितने नहीं रखना चाहता, एक बंदे से कितना काम करवाना चाहता है, कितना नहीं करवाना चाहता। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सीईओ, द मैनेजर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज वेरी इजी कि आप एक काम को चार हिस्सों में तकसीम करके यू कैन हायर इजीली 4 पर्सन, 4 एम्प्लॉयज। लेकिन ये हम इस तरह से करते नहीं क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेकर, उसके ऊपर भी बोझ होगा। तो हम एक बंदे से 2 या 3 काम ले लेते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आते हैं, एक डायग्राम आपके सामने है जी, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर।
Regardless of size, industry, or structure, an organization must maintain a clear and precise intellectual communication structure that allows managers to issue directions to workers and allow workers to give feedback. So managers can adjust their plans. अब यहां पर अगर हम दोबारा से वन लाइन बाय लाइन अगर हम चलें तो कहता है रिगार्डलेस ऑफ साइज, इंडस्ट्री और स्ट्रक्चर। अब एक इंडस्ट्री है, अब उसके उसका कुछ कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, कहता है उससे कतई नजर हो जाए। लेकिन कहते हैं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको क्या करना पड़ता है, एक इंटरनल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ता है। एक बात हमें एक और जेन में रखनी पड़ेगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। नंबर वन इज द इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द नंबर टू इज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशन का और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। अब नाउ वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द इंटरनल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। अब हम इंटरनली फोकस कर रहे हैं चीजों के ऊपर, मैनेजर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, कॉलीग्स के ऊपर, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, हाई अप्स के ऊपर, उन सब के ऊपर इशू कर। अब कहते हैं मैनेजर्स डेफिनेटली दे विल बी एट द टॉप and they must be issuing some directions to the workers and allowing workers to give feedback so that the managers can adjust their plans. अब मैनेजर जो टॉप लेवल के ऊपर होंगे कि वो नीचे वाले लोगों को कोई इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई गाइडेंस, कोई प्लान्स, कोई टारगेट्स, कोई टास्क डेलीगेट कर रहे होंगे। और जब ये टास्क वो पूरे करेंगे नीचे वाले लोग, तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द मैनेजर्स टू कंप्लीट द थिंग्स। नंबर वन इज द अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल। जो लेटरल कम्युनिकेशन है इसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जबकि अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये वर्टिकल कम्युनिकेशंस कहलाएंगे बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर्स। अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जबकि लेटरल कम्युनिकेशन है वो विद इन वन हिरार्की, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी कहलाती है, और विद इन द इक्वल रैंक एंड स्टेटस और पीयर ग्रुप कहलाता है। यानी एक ही रैंक के लोगों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी वो क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड द लेटरल कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर भी बड़े जो है ना वो टीयर्स बनते हैं, मतलब मैनेजर्स जो हैं वो सबसे ऊपर वाले लेवल के ऊपर हैं, फिर उसके नीचे वाले मैनेजर्स, फिर उसके नीचे वाले, फिर सबसे नीचे वाले वर्कर्स। तो सारे अपने अपने अंदाज में एक दूसरे के साथ अदारे की भलाई के लिए काम करेंगे। अब यहां पर देखते हैं जी कि कम्युनिकेशन अकर्स इन फोर डायरेक्शंस। नंबर वन उसने कहा जी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमने मेंशन कर दिया कि ये क्या कहलाती है, इट्स वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर उसके नीचे आता है जी हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। और लास्ट में आएगा जी डायगोनल कम्युनिकेशन। अब इस आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर से हम देखते हैं कि ये डायगोनल कम्युनिकेशन कैसे। आपके एक स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपने देखा जी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन का एरो बना हुआ है, स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एरो बना हुआ है, और बिल्कुल सेंटर में जो लेटरल है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का है। जबकि आप देखिएगा कि एक ब्लू जो ब्लॉक है उसमें से एक ऑरेंज ब्लॉक के अंदर एक एरो गया है, तो उसने इसको डायगोनल कम्युनिकेशन के नाम से जाना है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है कि एक डिपार्टमेंट का जो सबसे लोएस्ट ऑफ द एम्प्लॉय या दूसरे डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, इफ दे आर गोइंग टू टॉक, अगर वो बात करते हैं और वो फॉर्मली बात करते हैं, ऑफिशियली बात करते हैं, अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में बात करते हैं, एंड विदाउट टेकिंग द परमिशन, मतलब जो सबसे लोएस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है ब्लू ब्लॉक वाला, if he has not taken the permission from his bosses that he has some urgent piece of work and he wants to discuss some pressing issues with the high up of the orange block, तो फिर ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगी एंड दैट हैज बीन डिस्करेज्ड। हम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जो कम्युनिकेशन है इसे हम डिस्करेज करते हैं। उसके डिस्करेज करने की हमारे पास सबसे बड़ी वजह यह है
कि हम कहते हैं कि अगर उसने पूरी की पूरी हिरार्की को तोड़ा है, उसको ब्रेक किया, उसको वॉयलेट किया, नॉर्म्स और जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जो भी चैनल्स बने हुए हैं, अगर उनको वो ब्रेक करके ऑरेंज डिपार्टमेंट के बॉस के पास जाकर उनसे डिस्कस करता है, and without taking the permission of his immediate boss, so then it will be called the diagonal communication, and it's been highly discouraged in the organization. हम इसको कहते हैं कि यार ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने बॉस से परमिशन नहीं ली और फिर आप ऑरेंज डिपार्टमेंट के बॉस के साथ मिलने के लिए चले गए. Now, the same is the case with the manager of the orange department. If he is going to have some clue of the blue department and is going to discuss some things with the blue department, तो क्या ये भी सर बात ठीक होगी? हम कहते हैं दैट्स ऑल्सो बिन नॉट वर्दी टू डू सो. ये भी कोई अच्छी बात नहीं है. इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस. नेक्स्ट आते हैं जी के अब हम हर एक जो कम्युनिकेशन है, अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, उसको हम तफसील से पढ़ने की कोशिश करते हैं जी. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है जी, कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू वर्कर्स, यानी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आना. इसके एडवांटेजेस देखेंगे, फिर हम इसके अंदर से प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जी. When employees receive appropriate downward communication from management, they can be better motivated and more efficient. It's a universal truth that every worker in the bottom of the hierarchy, he wants some motivation from his upper man. अगर उसका मैनेजर उसको बकअप करता है, उसको बैक करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको मोटिवेट करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा काम अपने नीचे वाले लोगों से निकलवा सकता है. दूसरे नंबर पे, दे नीड नॉट ओनली क्लियर जॉब डायरेक्शंस एंड सेफ्टी रूल्स, बट ऑल्सो फैक्ट्स about organizational strategy, products, and viewpoints on important controversial issues. जो नीचे वाले इंप्लॉयज होते हैं ना, उनको किस चीज की जरूरत होती है? नंबर वन, डायरेक्शंस की. नंबर टू, सेफ्टी रूल्स की. नंबर थ्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की. द प्रोडक्ट विच दे आर गोइंग टू सेल. कंट्रोवर्शियल इश्यूज के मुतालिक जो इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स हैं वो भी चाहिए होते. इसका मतलब है कि हमने बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को अपनी ही प्रोडक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन ना दी, अगर उनको उनकी डायरेक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुतालिक या सेफ्टी रूल्स के मुतालिक या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के मुतालिक ना बताया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं कर सकेगी. मैंने पहले भी जिक्र किया था. मैंने कहा था कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड है, तो उसका मतलब है कि जिंदगी मौजूद है. अगर हम उसमें से ब्लड निकाल लें, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो लाइफ. सेम इज द केस विद ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कम्युनिकेशन को निकाल लिया, और अगर मैनेजर्स टॉप टू बॉटम और कम्युनिकेशन करते ही नहीं है, या फिर वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है, या फिर कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको अपहोल्ड करके रख लेते हैं, विद हेल्ड करके रख लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर, and they are not sharing the information to their employees, and the employees will not be able to perform their duties efficiently. वो नहीं कर पाएंगे. तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं जी. They are concerned about employees benefits, health care, insurance, promotions, pensions, training, work environment and retirement. लेकिन जो employees होते हैं ना, whenever they have joined an organization, besides the salary and the timings of the organization, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो चाहते भी हैं कि उनको हो. जिसमें सबसे पहले हमने कहा जी कि हेल्थ बेनिफिट्स है, फिर इंश्योरेंसेज हैं, फिर प्रमोशंस हैं कि कब उनकी प्रमोशन होगी, कितने साल लगेंगे उनको आगे बढ़ते हुए, पेंशन कितनी होगी आफ्टर द रिटायरमेंट, ट्रेनिंग क्या उनको करवाई जाएगी, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, और रिटायरमेंट प्लान्स क्या होंगे उनके लिए. तो ये तमाम चीजें एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का जानना चाहता है, और इसकी मतलब सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? डेफिनेटली द हाई अप्स, बिकॉज दे हैव प्लान कि उन्होंने किस डिपार्टमेंट के लोगों को कब प्रमोशन देनी है, उनके लिए इंश्योरेंस की रकम कितनी होगी, उनके लिए हेल्थ केयर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उनको कब कब ट्रेनिंग की जरूरत है, और रिटायरमेंट के बाद किस किस बंदे को कितनी पेंशन मिलेगी. ये तमाम चीजों को उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा होता है.
लेकिन हर एम्प्लॉय चाहता ही है कि उसको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या ड्यूरिंग द जॉब उसको ये तमाम चीजों के बारे में पता हो। फोर्थ पॉइंट है जी, इन ऑल द मैनी pressures from the employees force employers to accountable for their decisions through effective downward communication. Employers who communicate effectively have more productive employees. अच्छा, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका अपना एक प्रेशर होता है, उनका एक अपना एक ग्रुप बना होता है। उनके मैनेजर्स तो शायद इतने तादाद में ना हो जितने के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं। अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है दे कैन ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, यानी जिन्होंने उनको हायर किया होता है उनके ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं और उनको भी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अकाउंटेबल ठहराने से मुराद ये है कि वो हो सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि सर जो आपने डिसीजंस लिए दैट आर नॉट encouraged by the employees and the lowest of the employees are feeling down and out. Employers who communicate effectively have more productive employees. जो कहते हैं कि जो ऊपर वाले लोग हैं जितना ज्यादा अच्छा बेहतरीन तरीके के साथ अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करेंगे ना, उतना ही अच्छा क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव के जरिए से चलेगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि जो हाई अप्स हैं उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को पास ऑन करना है अपने एम्प्लॉयज की तरफ। मैनेजर्स को तो पता है कि गोल क्या है, हाई अप्स को तो पता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लेकिन नीचे वाले इंप्लॉयज जो हैं उन्हें फील करवाना है कि दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट यू आर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर ऑल helping and contributing each other for the achievement of the objectives of the organization. Fourth point जी, fifth point, sixth point जी, information on work procedure and practice. अब वर्क का कोई प्रोसीजर है, यानी हर काम के करने का कोई तरीकेकार है, और ये कौन सिखाएगा? इट इज द मैनेजर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो एम्प्लॉयज है अगर वो किसी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा है तो उसको तो तमाम वर्क्स और प्रैक्टिसेस का पता होगा। डेफिनेटली उसको उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसके प्रैक्टिस और रूल्स के बारे में तो पता था। But now when he has joined another organization, a new organization, and this new organization must be carrying its own culture, own traditions, and own norms and own practices, procedures. तो एम्प्लॉयर का काम है कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिस और प्रोसीजर के मुतालिक, एसओपीस के मुतालिक बताए, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके मुतालिक बताए, इन्फॉर्म करे, ताकि वो एम्प्लॉय क्विकली एडजस्ट हो इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। अच्छा, हर एम्प्लॉय जो भी काम करता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस के बारे में उसको बताया जाए कि कहां पर वो गलत कर रहा है, कहां पर वो ठीक कर रहा है। अगर गलत कर रहा है तो उसे उसकी तस्दीक की जाए, उसकी अनोमलीज को रेक्टिफाई किया जाए, और अगर वो काम को ठीक कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। तो हर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसकी प्रमोशन भी हो, उसको अप्रिशिएट भी किया जाए, उसको बोनसेस भी मिले, उसको इंसेंटिव्स भी मिले, और उसको नए रैंक और नए ओहदे पर भी लेकर जाया जाए। नेक्स्ट जी, लास्ट वन है जी, क्लैरिफाइंग कंपनीज कल्चर। मैंने अभी डिस्कस किया, मैंने कहा कि आपको हर कंपनी अपना अपना कल्चर कैरी करती है, हर एक कंपनी के अपने अपने कस्टम्स और रवाजात हैं, और इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर्स टू क्लैरिफाई द कल्चर ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स न्यू एम्प्लॉयज और एनी प्रीवियस एम्प्लॉय एज वेल। जैसे हम किसी फैमिली में रहते हैं ना, तो हमें भी बार बार बताना पड़ता है अपने बच्चों को, या हमारे बड़े हमें बताते थे कि आपकी फैमिली का कल्चर क्या है, हमारी फैमिली में ये चीजें होती हैं या नहीं होती। तो एक कह सकते हैं, यू कैन से इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैमिली की तरह होती है, बिकॉज द एम्प्लॉयज हैव टू स्टे एंड वर्क टुगेदर फॉर राउंड अबाउट 8 to 10 hours पर डे, और एक अपनी जिंदगी का एक प्राइम टाइम उस सोशल गैदरिंग के अंदर, उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुजार कर आते हैं। नेक्स्ट जी, उसके बाद है जी, प्रॉब्लम्स इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फेलियर टू कम्युनिकेट।
Management assumes that employees will not be interested in the larger issues of the management. Management assumes, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स जो हाई अप्स होते हैं वो समझते हैं कि शायद यार ये जो मैनेजर समझते हैं कि यार ये जो एम्प्लॉयज है ना, इनको हमारे मामलात से क्या, या ऑर्गेनाइजेशन के मामलात से क्या है। हो सकता है कि जो लोएस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज है, दे मस्ट नॉट बी बॉदरिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मैनेजर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि लोएस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट देयर ओन सैलरी, एंड दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेंडिंग देयर टाइम। नंबर टू Number three, management assumes that employees will not understand the larger issues of the management. I have already discussed it. Number four पे चलते हैं जी। Management do not themselves have the information or do not know the answers to the problem. Sometimes अगर employees कोई क्वेश्चन पूछ लें, कोई बात पूछ लें, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश करें अपनी मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट समटाइम्स ये अगर ये कह दे कि दैट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, so definitely there will be questions which have been aroused by the structure of the organization, and might be some of the employees must be raising fingers towards the senior managers that they are not passing information to us. So it can become a controversial kind of an issue. Okay जी, नंबर 5 पे चल रहा हूँ जी मैं। मैनेजर्स आर नॉट स्किल्ड, ट्रेन्ड एंड कॉन्फिडेंट इन कम्युनिकेशन। यहां पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना, क्या managers feel insecure, they are not properly trained, they do not have communication skills, and they are not having a command how to impart their knowledge to the subordinates। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इस वजह से वो एम्प्लॉयज के साथ गुफ्तगू करने में, वो स्किल ना होने की वजह से वो उनको डोमिनेट भी नहीं कर पाते, और उनको मोटिवेट भी नहीं कर पाते, और उनसे काम भी नहीं ले पाते। 6 point, managers fear that they are undermining their authority by sharing information to their subordinates। मैंने अभी आपको जिक्र किया कि इन पाकिस्तानी सोसाइटी मैनेजर्स फील इनसिक्योर, इस वजह से वो कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर नहीं करते। वो इसलिए शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि अगर मेरे पास भी वो इंफॉर्मेशन है जो मेरे एम्प्लॉय के पास इंफॉर्मेशन है, तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंस। और उनको ये भी लगता है कि अगर मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, तो हो सकता है कि मेरा एम्प्लॉय, मेरा सबॉर्डिनेट जो है, वो मुझसे अच्छा आइडिया प्रेजेंट कर दे, और इस वजह से भी वो इनसिक्योर रहते हैं। और मैनेजर्स फील कि अगर हम अपने पास इंफॉर्मेशन रखेंगे तो एम्प्लॉय बार बार आकर हमसे पूछता जाएगा, तो दे फील देमसेल्व्स एन ऑफिसर। तो उनको महसूस होता है कि अब हम बहुत एक अच्छे ऑफिसर बन गए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अस। तो ये डेलीगेशन ऑफ वर्क नहीं हुई, ये डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं हुआ। ये दिस यूजुअली हैपेंस इन द पाकिस्तान सोसाइटी। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर के कल्चर के अंदर ये तमाम चीजें होती हैं। सहमत है जी। मैनेजर्स fear that they are making themselves redundant by allowing subordinates to know and understand more of their jobs। by allowing subordinates to know and understand more of their job। अगर एक एम्प्लॉय, एक सबॉर्डिनेट अपनी जॉब के बारे में उसको पता लग गया कि मेरी जॉब क्या है, मेरा काम क्या है, सारा कुछ क्या है, तो मैनेजर समझता है कि भाई अगर इसको इस सारी चीजों के बारे में पता लग गया ना, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ही विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मी, he will feel free, he will know what is his domain and what are his parameters। तो इसलिए वो हमेशा, मैनेजर्स हमारे यहाँ पर कोशिश करते हैं कि द एम्प्लॉय जो है वो मेरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे, और मुझसे ही हर चीज के बारे में मशवरा करे। नंबर 9, managers fear that they are giving information that might fall into the wrong hands or to be contrary to the organization's interest। अब यहां पर देखिएगा एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। अब मिसट्रस्ट ये है कि मैनेजर्स फील
कि यार अगर मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और को बता दे और इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हैंड्स के अंदर चली जाए, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देते, और वो समझते हैं कि अगर हमने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाकर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ना पता लगे। तो इसका मतलब है कि आपने जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, यू आर नॉट ट्रस्टिंग देम। ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हम किसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ओके जी। इंप्रूविंग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, establishing regular systems of for conveying information to subordinates, मीटिंग्स, briefings, circulars, manuals, notice boards। अब ये कम्युनिकेशन के चैनल को हमवार करने का एक तरीकेकार है कि दैट यू कंटिन्यूअसली डू मीटिंग्स विद योर सबॉर्डिनेट्स, गिव एंड टेक ब्रीफिंग फ्रॉम देम, सर्कुलर्स हैं, मैनुअल्स हैं, नोटिस बोर्ड्स के जरिए से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराएं। नंबर टू जी, प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट डेवलप करें, कॉन्फिडेंस के अंदर लें अपने सबॉर्डिनेट्स को, और कॉन्फिडेंस को फील करवाएं कि दैट यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम डिपेंडिंग ऑन यू पीपल, दैट वन डे यू पीपल आर गोइंग टू बी रेज्ड टू द सम सर्टेन लेवल, टू द हाईएस्ट लेवल। मेहनत करें और अगले वाली पोजीशंस के ऊपर चले जाएं। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग सेशंस फॉर मैनेजर्स टू कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली विद देयर सबॉर्डिनेट्स। ट्रेनिंग सेशंस वो भी होने चाहिए, सबॉर्डिनेट्स के भी और मैनेजर्स के भी। फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्डिंग मैनेजर्स हु प्रमोट ए कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन। अब रिवॉर्ड मिलना चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी गेन्स की सूरत में मिले, या वो प्रमोशंस की सूरत में मिले, या कोई इंसेंटिव्स की सूरत में मिले। तो उनको बताना चाहिए कि अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे तो अच्छा टारगेट्स अचीव करेंगे, तो मैनेजर्स जो हैं वो उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। नंबर फाइव, encouraging news swapping informally between the managers and their subordinates। शायद आपने कभी देखा होगा कि एक तो है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप किसी पार्टी पर जाते हैं, किसी डिनर पर चले गए, किसी ऐसे इवेंट पर चले जाते हैं ना, तो आपके जो हाई अप्स होते हैं वो डेलिबरेटली आपके पास आकर आपसे गपशप मारते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वी आर जस्ट लाइक द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, क्या हम आम इंसानों की तरह हैं। ये तो सिर्फ जॉब की वजह से है कि हमें आपके साथ थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है। लेकिन एक मैनेजर फील करता है कि अगर मैं फॉर्मल वे के अंदर से चीजों को हासिल नहीं कर पा रहा, या मैं वो टारगेट्स हासिल नहीं कर पा रहा, तो मुझे चाहिए कि मैं इनफॉर्मल तरीके के साथ अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इंडल्ज हो जाऊं। चाहे कोई इवेंट रख लें, चाहे कोई क्रिकेट मैच रख लें, चाहे कोई फंक्शन रख लें, चाहे कोई शादी में चले जाएं, तो वो इनफॉर्मली आपके साथ गपशप लगाते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच यू पीपल आर फेसिंग, या आपसे आइडियाज जनरेट करते हैं कि इस मौके के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। ये भी उनका एक तरीकेकार है आपसे बातचीत करने का, ताल्लुकात इस्तवार करने का, आपकी थॉट्स को गेन करने का और डिसीजन मेकिंग करने का। सिक्स पॉइंट है जी, डिस्करेज एक्सेसिव स्टेटस कॉन्शियसनेस अमंग मैनेजर्स। हमारे यहाँ पर इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, मैनेजर्स यूजुअली हमारे यहाँ पर वो क्या है कि वो स्टेटस कॉन्शियस बन जाते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने हाथ नहीं मिलाना, वो कहते हैं जी कि हमने गले नहीं मिलना, वो कहते हैं जी कि हमारे ऑफिस में कोई हमारा सबॉर्डिनेट जो है ना वो चल कर ना आ जाए। वो देख दे वांट टू क्रिएट अ गैप, वो डिस्टेंस रखते हैं। वो डिस्टेंस के जरिए से ही क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप भी आता है, और डिस्टेंस के जरिए से ही इंप्लॉयज अपने मालिक से खौफ भी खाता है। अब नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम वो बेहतर तौर पर सर अंजाम नहीं हो पाता, सिर्फ ये डिस्टेंस रखने की वजह से, कि सुपीरियोरिटी की वजह से। अब मैं इसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का हूं या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का हूं, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कि एक बंदा खुद समझता है कि वो समझता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूं, मुझे नहीं अपने लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट से मिलना। या वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो इस सेंस में है कि उसको पता है कि यार मेरे नीचे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के आइडियाज हैं। अगर उनके पास बेहतरीन किस्म के आइडियाज हैं तो दे कैन ओवरकम द होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
और मेरी बात को सुनेगा भी। दिस इज दिस कैन बी समहाउ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसके बाद आते हैं जी अपवर्ड कम्युनिकेशन की तरफ। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है, this is called the process of encouraging employees to share their feelings and ideas with the management. अब नीचे से लोगों ने क्या करना है कि ऊपर वाले लोगों से बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है। Upward communication flows from lower level to the higher level in the organizational hierarchy. Upward communication provides feedback to the managers and keep them informed of the progress towards the achievement of the organization goals and problem faced by the subordinates in the performance of their duties. It also informs the managers how the subordinates feel about their jobs, morale, co-workers, and the organization. अच्छा, मैनेजर्स ने कुछ डिसीजंस लिए, वो नागवार गुजरे नीचे वाले लोगों को। अब इट इज द ड्यूटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स टू टॉक टू देम, इट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द मैनेजर्स टू टॉक टू देम। एक मीटिंग्स कायम करें, ब्रीफिंग्स दें। अगर आपके वर्कर का मोराल डाउन हो गया, अगर आपका वर्कर डिसहार्ट हो गया, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो फिर क्या करेगा, वो नई जॉब ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि दैट ही इज मिसफिट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर उसको लगता है कि मैनेजर्स उनको सही तौर पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे और वो काम करने में प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस। Many executives sincerely seek frank comments from employees in addition to the usual periodic reports. अब कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, वो ये चाहते हैं और करते भी हैं, वो कहते हैं जी कि हम हमारे सबॉर्डिनेट हमें खुलकर बताए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो फ्रैंकली होते हैं। दूसरे नंबर पे, सक्सेसफुल मैनेजर्स लिसन क्लोजली टू ओपिनियंस, कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, स्पेशली व्हेन दे आर क्लियरली एंड इफेक्टिवली स्टेटेड। अच्छा, कहते हैं कामयाब मैनेजर की भी उसने एक खूबी बयान कर दी कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स की कंप्लेंट्स को भी सुनता है, प्रॉब्लम्स को भी सुनता है, सजेशंस को भी सुनता है, हर चीज को बड़े क्लोजली वॉच करता है। नंबर थ्री, एज ए रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन, सम कंपनीज आर डेवलपिंग न्यू मैनेजमेंट स्टाइल्स which make input from employees an integral part of the important decision affecting the company. अब एक ग्लोबल कंपटीशन के दौर में हम रह रहे हैं, उसके अंदर क्या करना चाहिए हमें कि नए नए मैनेजमेंट के स्टाइल्स अपनाने चाहिए। और वो नया मैनेजमेंट का स्टाइल ये है कि जिसके अंदर इंप्लॉयज को डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ताकि वो भी हर किस्म के डिसीजंस को ओन करे। ये ना हो कि अगर डिसीजन ठीक हो गया, मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि देखिएगा कि व्हाट अबाउट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतती है ना, तो कैप्टन का जब इंटरव्यू सुनेंगे ना, तो कैप्टन तो क्या कहता है, वो कहता है जी कि ये इट इज ऑल अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ द बॉयज। ये सिर्फ सिर्फ लड़कों की मेहनत है। ही डज नॉट टेक द क्रेडिट, वो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेता, वो पूरे का पूरा क्रेडिट अपनी पूरी टीम को दे देता है। लेकिन वही टीम जब हारती है, तो कैप्टन कहता है कि मैं रिजाइन करता हूं, बाकी टीम मेंबर्स तो रिजाइन नहीं करते। कैप्टन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कप्तान जिम्मेदारी लेता है, कोच जिम्मेदारी ले लेता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कप्तान या कोच या मैनेजर्स दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो डिसीजन मेकिंग के अंदर जब तक वो अपने सबॉर्डिनेट्स को शामिल नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से मूव नहीं करेगी। Information by employees on their work performances, problems, information about achieved targets, objectives, comments on procedures and policies, suggestions for improvement in the system, employees' feelings about the organization. आपने हर चीज के साथ डिस्कस करें, परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस करें, टारगेट्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करें, और सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस करें, और व्हाटसोएवर द एम्प्लॉयज फीलिंग्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बातें डिस्कस करनी चाहिए कि हाउ टू इंप्रूव द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जी
कि जो अपवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैं जी। नंबर वन, द सबऑर्डिनेट्स में कंसीडर दैट द सीनियर्स वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन गिवन बाय सबऑर्डिनेट्स। अब सबऑर्डिनेट्स जो है ना, उनको लगता है कि शायद सीनियर दिलचस्पी ही नहीं रखते हमारी बात को सुनने में, इसलिए वो अपना ओपिनियन ही नहीं देते। Number two, subordinates may think that the seniors are busy and already facing information overload and would not have time to consider the problems or suggestion provided by the subordinate. अब सबॉर्डिनेट को ये भी महसूस होता है, उन्हें लगता है कि शायद ये जो हमारे सीनियर्स हैं ना, इनके पास काम बहुत ज्यादा है। अगर हम इनके पास जाएंगे, इनसे अपनी बात को शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि ये कह दें जी हमारे पास टाइम नहीं है। तो शायद वो पहले ही प्री प्लान सोच लेते हैं कि इसलिए वो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। नंबर थर्ड, subordinates may fear that the reporting of a problem or communication of a grievance may result in antagonizing or disappointing the seniors, which may have adverse consequences. अब कुछ एम्प्लॉयज को यह भी महसूस होता है कि अगर हम अपना प्रॉब्लम लेकर अपने सीनियर के पास जाएंगे ना, तो उनकी ग्रीवियंसेस की वजह से, यानी अब मैंने फर्ज करें मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं अपने कुछ शिकायत लेकर अपने सीनियर के पास जाता हूं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो सीनियर मेरी बात को सुनने के बाद एंटेगनाइज हो जाए, वो गुस्से के अंदर आ जाए, वो डिसअपॉइंट हो जाए, और हो सकता है कि मुझे एडवर्स किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। अब जब ये सूरत हाल होगी, जब आप मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को अपने पास नहीं आने देंगे, और अपने एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी बातों को, अपनी शिकायत को, अपनी प्रॉब्लम्स को वो शेयर नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ वे से चलेगी? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। Subordinates may fear that the upward communication may be considered by their colleagues as a way of getting closer to seniors and seeking favors. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, फर्ज करें मैं एक एम्प्लॉय हूं एक ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं जा रहा हूं अपने बॉस के पास, तो मेरे दाएं बाएं वाले जितने भी लोग हैं वो कहेंगे कि यार ये लगता है कि ये जानबूझकर ना बॉस के पास जाना चाहता है और बॉस के करीब होना चाहता है, और शायद हमारी शिकायतें भी लगाना चाहता है। वो हमें हम कभी अपने आप को देखें कि हम बॉस के पास जाएं, तो दाएं बाएं वाले जो हैं वो देखते हैं कि यार ये आजकल बड़े चक्कर लगा रहा है साहब के दफ्तर के। तो ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट फ्रीक्वेंटली, कहता अक्सर औकात बसा औकात आपने क्या करना है, मीटिंग्स को अरेंज करें। नंबर टू, ऑर्गेनाइजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस फॉर एम्प्लॉयज एंड टीम्स। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग को हमने एक अलग भी टॉपिक रखा हुआ है कि उसमें भी जो है ना वो हम इसको पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर भी डिलीवर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर। ब्रेनस्टॉर्मिंग आप ये समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं मीटिंग्स, मीटिंग्स रखें। नेक्स्ट है जी, सेटिंग अप क्वालिटी सर्कल्स। नंबर फोर, encouraging input and suggestions from employees. Number five, open door policy by managers. Managers encourage and welcome suggestions of their subordinates. They are always ready to listen to their grievances. करना क्या है हम मैनेजर्स को? अपने दरवाजे खुले रखें, अपने सबॉर्डिनेट के ग्रीवियंसेस को सुने, उनकी सजेशंस को सुने, और अपने इर्द गिर्द एक क्वालिटी सर्कल बनाएं, अच्छे लोगों का एक ग्रुप बनाएं, जो कि मैनेजर से बातें छुपाए ना बल्कि उनको बताए, शिकायतें ना लगाए किसी की, लेकिन प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करें। अगर मैनेजर्स को कोई भी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए नहीं आता और नहीं मिलता, तो समझिएगा कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मतलब है कि उस मैनेजर को महसूस करना चाहिए कि दैट देयर इज ए ह्यूज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन हिम एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये भी मैंने आपको बताया कि जो लेटरल कम्युनिकेशन है, जैसे आपको एरोस भी लगे हुए हैं, इससे भी आपको पता लग रहा है कि दिस इज कॉल्ड द लेटरल कम्युनिकेशन।
एडवांटेजेस पहले पढ़ते हैं जी। नंबर वन, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज बिटवीन एंड अमंग डिपार्टमेंट्स। अब एक दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, दो से ज्यादा डिपार्टमेंट के दरमियान में भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है थ्रू दिस। नंबर टू, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स। आपने क्या करना है कि जब आप लेटरल कम्युनिकेशन करते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सपोर्ट भी करेगा और दूसरे स्टाफ मेंबर्स को सपोर्ट भी करता है। हमने कहा एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप सॉलिटरी या आइसोलेशन के अंदर काम नहीं कर सकते। आप अकेले तनहा बैठे काम नहीं कर सकते, आपको दूसरे इंप्लॉयज की, दूसरे वर्कर्स की जरूरत रहती है जी। फिर थर्ड है जी, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स इज आल्सो एसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब पीयर ग्रुप क्या है? एक ही जमाने के लोग, हम असर लोग, एक ही रैंक और एक ही स्टेटस के लोग। अब जो इक्वल रैंक के लोग होंगे ना, उन्हें आपस में बातचीत करते हैं, वो गपशप लगाते हैं, वो फॉर्मल वे के अंदर भी, वो इनफॉर्मल वे के अंदर भी। वो एवरीडे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। वो जो टारगेट्स, उनको टास्क दिए जाते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपस में स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये स्ट्रेटजीज का बनना और आपस में कम्युनिकेट करना, ये भी कम्युनिकेशन के फ्लो और ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। Problems in horizontal communication. One manager or department may feel that another is encroaching on their area of authority or expertise. हर डिपार्टमेंट की ये कोशिश होती है जी कि वो चाहता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग उसके पास ना आए और ना ही उनके काम को देखें, वॉच करें, ऑब्जर्व करें। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, महसूस करते हैं कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग अपने पैरामीटर्स को छोड़कर हमारे अंदर इंडल्ज करने की और इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तजावुज करने की कोशिश कर रहे हैं। Line managers may resist the expert authority of functions managers such as accountants or personal officers within their departments. अच्छा, कहता है कि जो मैनेजर्स हैं समटाइम्स वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब अकाउंटेंट्स को या पर्सनल ऑफिसर्स जो होते हैं, कि वो उनके डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी मुदाखलत ना करें। There may be conflict between individuals, groups, or functions because of widely different working habits and styles, coordination problems, and distorted perceptions. कहता है मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स के दरमियान में भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि हर एक का ना अपना वर्किंग स्टाइल होता है, वर्किंग हैबिट्स होती हैं। और वो इस वजह से भी एक दूसरे के साथ जो है ना, वो यू कैन से दे फॉल इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स। एक बंदा कहता है मेरा काम करने का स्टाइल ये, दूसरा कहता है मेरा काम करने का स्टाइल ये। तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराउज होते रहते हैं। अब इनको प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इंप्रूविंग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Regular meetings between the managers to discuss issues related to the departments and organizations. मीटिंग्स करें, कॉन्टिन्यूसली मीटिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करें। नंबर टू, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स एंड टीम्स। नंबर थ्री, जॉब रोटेशन, पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। जॉब रोटेट करनी है, पीरियोडिक शिफ्टिंग करनी है एम्प्लॉयज की। अब बार बार एक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को लेकर जाएं, जॉब रोटेट करें। आपने देखा कि यूनिवर्सल है कि हर 3 साल के बाद जो है, वो एक जज की, एक ब्यूरोक्रेट की, किसी फौज की बटालियन की, हर 2-3 साल के बाद वहां पर ट्रांसफर हो जाती है और रोटेशन पॉलिसीज के ऊपर लोग चलते हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स थ्रू न्यूज़लेटर्स, सर्कुलर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ए लिएजन ऑफिसर। अब लिएजन ऑफिसर समझ लीजिएगा कि एक ऐसा ऑफिसर है कि जो दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन को इस्तवार रखता है, यानी वो मिडल मैन के तौर पर काम करता है। वो दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान में जो गुफ्तगू शनीद है, उसको डेवलप करने के अंदर मदद देता है। नेक्स्ट आते हैं जी हम डायगोनल कम्युनिकेशन की तरफ।
कम्युनिकेशन दैट कट्स अक्रॉस बोथ वर्क एरियाज। अब मैंने हम जिक्र किया था कि एक ब्लू ब्लॉक में था और एक ऑरेंज ब्लॉक में था। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं, कहते हैं कि यार जब हमने दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर पेनिट्रेट करना है, इंक्रोच करना है, तो फटाफट वहां पर जाते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं और वहां से चीजों को हल निकाल कर तलाश करके वापस आ जाते हैं। लेकिन हमने कम्युनिकेशन चैनल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को वॉल्यूट भी कर दिया साथ ही। अब इसका नुकसान है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं इसको, फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क को। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस through the formal channels of organization structure is known as formal communication, also known as impersonal or business communication। अच्छा, ये कुछ चैनल्स हैं, इनकी मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूं। ये मुख्तलिफ ये डायग्राम्स बनी हुई हैं। आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है जी चेन। मैं कर्सर लेकर आता हूं यहां पर, ये देखें, ये चेन नेटवर्क है। इसमें देखिएगा एक सिंगल हिरारकी के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। यानी एक यहां से टॉप से ऑर्डर पास होगा, नीचे तक जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर तक जाएगा। ये एक चेन नेटवर्क है, ये एक स्टाइल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने का। दूसरा नंबर पर बाय। इसमें टॉप से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो लास्ट है इसके अंदर से दिस यहां से एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को, एक कह लें कि दो डिपार्टमेंट मुख्तलिफ किस्म के आ गए। फिर उसके बाद आता है व्हील नेटवर्क। अब ये थर्ड वन, ये व्हील नेटवर्क है। व्हील नेटवर्क में क्या है कि आप एक सेंटर मिडल मैन है, और मिडल मैन में के क्या है कि दाएं बाएं चार मुख्तलिफ मैनेजर्स हैं, वो सारे आंसरेबल हैं किसके, मिडल मैन को। और मिडल मैन से ही सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जनरेट भी हो रही है। उसके बाद आते हैं जी सर्कल। आप सर्कल को देख सकते हैं। सर्कल के अंदर क्या है कि अगर आप चेन नेटवर्क को देखें या सर्कल नेटवर्क को देखें, तकरीबन ये एक किस्म की सेम है, लेकिन इसमें ये पता नहीं लग रहा, इसमें हम ये नहीं अंदाजा लगा सक रहे कि इस सर्कल नेटवर्क में कि इंफॉर्मेशन स्टार्ट कहां से हुई और एंड कहां पर हो रही है। सर्कल नेटवर्क के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि अगर हम चेन नेटवर्क को देखें तो हमें लगता है कि यहां से टॉप से स्टार्ट हुआ, बॉटम पे जाएगा, बॉटम से स्टार्ट हुआ तो टॉप पर जाएगा। लेकिन चेन नेटवर्क के अंदर हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि हु इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज जनरेटेड द इंफॉर्मेशन, और हमें यह भी नहीं पता लग रहा कि हु इज द पर्सन हु इज एट लास्ट। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट पर। देखिए ये है जी ऑल चैनल्स। ऑल चैनल्स में क्या है कि ऑल चैनल्स के अंदर यहां पर एक बहुत बड़ा सा मिक्सचर है। यानी हर बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ गुफ्तगू शीनीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अब ये ऑल चैनल्स नेटवर्क को मैं एक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से आपको मैं समझाने लगा हूं। और यहां पर देखिएगा, ये आ गया जी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ग्रेप वाइन। अभी आपने जो ऊपर डायग्राम देखी जिसमें ऑल चैनल्स की, ऑल चैनल्स को हम, अब मैं ग्रेप वाइन को पढ़ने लगा हूं, देखिएगा ग्रेप वाइन और ऑल चैनल्स में क्या चीज ममासलत रखती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। जी, informal communication channels do not adhere to supervisor subordinates relationship and take place across the different official levels in organization। अच्छा जी, informal communication occurs outside the formal or communication channels. It is also exists with the formal communication system. It refers to talks in the canteen, in the corridors, on the way home, on the phone line and messaging application। आप ये समझिएगा कि ये वैसे यहाँ पर जो उसने ऑल चैनल्स बनाया, ये तो उसने ऑफिशियल बनाया, फॉर्मल बनाया।
जबकि ग्रेप वाइन जो है इट्स एन इनफॉर्मल वन। ग्रेप वाइन, अब मैं पहले आपको फॉर्मल इंफॉर्मेशन और फॉर्मल चैनल्स और इनफॉर्मल चैनल्स दोनों के बारे में थोड़ा सा मैं ग्लिप्स दे देता हूं आपको। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो है जो कि एक हिरार्की के अंदर रहते हुए, पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए हम करते हैं। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर कोई डोमेन नहीं, उसके अंदर कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। ये आमतौर पर जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि वेन एवर यू आर इन ए मीटिंग, स्पेशली तौर पर इनफॉर्मल मीटिंग, और कभी कभार आप शादी ब्याह पर हों, पार्टी पर हों, फंक्शंस पर हों, तो वहां पर आपको जो है वो ये चीजें दिखाई देती हैं। वहां पर इनफॉर्मल मीटिंग दिखाई देती है। और इनफॉर्मल मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा मैनेजर्स को भी होता है, सबॉर्डिनेट्स को भी होता है। जबकि ये जो ऑल चैनल्स हैं, ऑल चैनल्स में जो इंफॉर्मेशन है वो हर तरफ ट्रैवल कर रही है, हर तरफ ट्रैवल कर रही है, और इसकी कोई बाउंड्री नहीं नजर आ रही हमें। अब ग्रेप वाइन में भी देखिएगा, यहाँ पर बुलेट्स में देखिएगा, नंबर वन, टॉक्स इन द कैंटीन, यानी इनफॉर्मल वे के अंदर। नंबर टू, इन द कॉरिडोर्स, ऑन द वे होम, ऑन द टेलीफोन लाइन एंड मैसेजिंग एप्लीकेशंस। आप इनफॉर्मली, आपने चैनल्स भी वो इख्तियार कर रहे हैं जो कि टोटल इनफॉर्मल है। आप ऑफिशियल चैनल्स को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी अपना ऑफिशियल फोन नहीं इस्तेमाल कर रहे, ऑफिशियल अपना ईमेल नहीं इस्तेमाल कर रहे। आप किसी से जाती तौर पर कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी। ग्रे वाइन के ग्रे वाइन के कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं। एक और चीज जो मेरी नजर में है, वो मैंने कहा मैं आपको उसका भी ग्लिम्स दे दूं ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक। ओके। मैनेजेरियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द ग्रेप वाइन। अब ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जो कि हर तरफ डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके बारे में मैनेजर्स का क्या एटीट्यूड है। द ग्रेप वाइन इज मोर प्रेवलेंट एट लोअर लेवल ऑफ द मैनेजेरियल हिरार्की। यानी ये टॉप वाले नहीं करते, ये नीचे वाले लोग करते हैं। द ग्रेप वाइन अपीयर्स टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर हमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नजर आता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये कहता है नहीं मिलेगा। थर्ड वन, managers can keep abreast of grapevine communication by regular conversing with known gatekeepers। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आपने घर के हालात को मालूम करना है तो घर के जो चौकीदार है या ड्राइवर है, उससे आप अगले बंदे के घर के हालात को मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैनेजर्स भी क्या करते हैं, गेट कीपर्स के साथ दोस्ती रखते हैं, ड्राइवर्स के साथ दोस्ती रखते हैं। उन्हें पता होता है कि जी कि किससे क्या इंफॉर्मेशन हमें किस वक्त मिल सकती है। फोर्थ वन, द ग्रेप वाइन कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। Attempt to stifle the grapevine are likely to stimulate it instead। कहते हैं ग्रेपवाइन को एक्सटिंग्विश नहीं, खत्म नहीं कर सकते, ना इसे स्टाइफल कर सकते, ना इसका गला गूंथ सकते, बल्कि ये कहता है ये और बढ़ेगी। आप जितना ज्यादा इसको रोकने की कोशिश करेंगे ना, ये और ज्यादा बढ़ेगी। एंड द फिफ्थ वन इज मॉनिटरिंग एंड ऑफिशियली correcting grapevine information is perhaps the best strategy for coping with the grapevine। कहते हैं इसको मॉनिटर कर लें, यानी अगर एक मैनेजर को लगता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसका उसका फर्ज बनता है कि वो उस तमाम सिचुएशन को मॉनिटर करना शुरू कर दे। सर मॉनिटर कैसे करेगा? तो इसका मतलब ये होगा कि क्या वो खुद पार्ट बन जाए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का? जी हाँ, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहता है आप रोक तो सकते नहीं है, तो खुद क्यों ना पार्ट बनकर पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पर किस बंदे से ट्रेवल होती है, जनरेट होती है और कहाँ तक पहुंचती है। ये कहता है अगर हम खुद नोट करना शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए बात ज्यादा इजी हो जाएगी। तो आज हमने ये चीजें पढ़ी थी। आज हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशंस पढ़ी हैं। आज हमने काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, और फिर कुछ चैनल्स के बारे में हमने जिक्र किया कि जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको हमने आज डिस्कस किया। होप सो यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।
लेकिन ठहरो,